أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكمي ولحقني بالصالحين واجعل لي لساني صدق في الآخرين واجعلني من وارثة جنات النعيم اللهم ألهمني رشدا و... وأعزني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتنابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث نمبر 42 الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ موقع دیا ہم نے. 42 کیا ہے حدیث؟ مغفرت الہی کی وصیتیں. مغفرت الہی کی وصیتیں. حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ان انسی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عن السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لآتيتك بقرابها ومغفرة. رواہ ترمذی. حدیث ہے رواہ ترمذی. اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے. ترجمہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے ہی آس لگا کر رکھے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. کیا ہے اس میں؟ جب تک ہمیں اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ پر آس لگا کر بیٹھتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے اور مجھے ان گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اے ابن آدم اگر تیرے گناہوں کا ڈھیر آسمان کے بادلوں کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا. سبحان اللہ. آسمان کے بادلوں کے برابر بھی گناہ انسان کیا، پھر اللہ سے خاص طور پر یعنی اللہ سے معافی مانگا، اللہ کی طرف رجوع کرا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سے بھی معاف کرنے والا ہے. اے ابن آدم اگر تو ساری روح ارض خطاؤں سے بھر کر اس حال میں
इस हाल में मेरे दरबार में आ जाए कि तूने मेरे साथ किसी को शिरिक नहीं ठहराया। यानी जितने भी गुनाह तू करके आया, मैं अल्लाह के पास करके गए हम, फिर भी अल्लाह के साथ शिरिक ना करे तो मैं सारी रूह अर्द अर्द बख्श बख्शिश के साथ भरकर तेरे इस्तकबाल करूंगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जितने भी गुनाह कर कर मेरे 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 पास आता है, मगर शिरिक एक नहीं करने से, क्या है, शिरिक एक ना करने से जितने भी गुनाह कर कर बनी आदम अल्लाह के पास जाता है, अल्लाह ताला क्या बोलता है, मैं सब भी माफ करके तेरे गुनाह को बख्श देके तेरे इस्तकबाल करूंगा। इससे हमें क्या पता चलता है, शिरिक सबसे बड़ा गुनाह है। शिरिक गुनाहों अजीम गुनाह में से है, इसीलिए शिरिक अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अल्लाह के साथ किसी को शिरिक करना, किसी को ठहराना, यानी अल्लाह इसके जरिए से हमें अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह को ये सिफारिश करके ऐसा भी करना, ये अल्लाह को नापसंदीदा है। अल्लाह के दरमियान और हमारे दरमियान कोई भी हाइल नहीं है। हदीस ये हदीस अल्लाह ताला के फजल व करम पर बहुत बड़ी दलील है। क्या है? यह हदीस अल्लाह ताला के फज़ल व करम पे बहुत बड़ी दलील है। उसकी बख्शिश की वसीयत का बयान और उसके गफूर रहीम होने पर दलील है। क्या है? यह हदीस हमारे को किससे, अल्लाह ताला के फज़ल व करम पर बहुत बड़ी दलील है और गफूर रहीम होने पर बहुत बड़ी दलील है। इमाम नूदी ने किताब का आगाज इसे अहम हदीस से किया। जैसे इमाम शाफी ने सारा इल्म एक तिहाई करार दे और उलमा की एक जमात ने भी इसे सलासल इस्लाम कहा। इमाम अबू दाऊद ने इसे निस्फ फखत फखा करार दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ का आगाज इसी हदीस से किया। साहिब मशकूरा ने बगैर किसी बाप के बांधे। क्या है इसमें? सही बुखारी में सबसे पहले यह हदीस है। क्या हदीस वो देखेंगे इंशाल्लाह है। इसे शुरू में नकल किया ताकि हर आलिम और मुतालिम को अपनी नीयत साफ करने का मौका मिले। क्या सबसे भी आलिम हो या जो भी हो, सीखने वाले हो या सिखाने वाले हो, पहले क्या करना, अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेना। क्या है वो? ये हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात लिकुल्ली इम्रा मा नूदिया। अपनी जगह बहुत अहम यही, मगर इमाम नूदी ने इसे अरबाईन के आखिर में इस हदीस को लाकर हर इंसान को इसकी तरफ मुतवज्जो किया। अरबाईन नूदी क्या है? ये किताब अब जो मैं पढ़ती हूँ, ये किताब में ये पहले इमाम बुखारी अपने पहले हदीस में रखे, बुखारी में पहले हदीस में रखे। अभी इन्हों क्या करे, अरबाईन में 40 में किताब में इसका नाम अरबाईन आखिरी में अरबाईन ये किताब का नाम, उसमें आखिर में ये हदीस में लाकर इंसानों को इंसानों को इस तरफ मुतवज्जो किए कि तो ये किताब की तरफ, ये हदीस की तरफ मुतवज्जो क्या है कि इंसान से जो लगारा लगाशिशें और कोताहियों होती है, कि तो जो भी कोताहियां और लगारिशां होते ही इंसान से, वो ख्वा तालीम व तालीम में हो, इनमें सीखने में या सिखाने में जो भी कोताहियां होते हैं, या अमल में जाहिरी हो या बातिनी हो। या जाहिरी कहेगा, जाहिर करके सबको देख कर करने का, और बातिनी के तो सबको छुप कर करने का। वो अल्लाह ताला के हुजूर आजिजी और अंगसकारी के साथ दुआ करे के दुआ करे तो उसके सब गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। बात सिर्फ मांगने और उसके हुजूर झोली फैलाने की है। क्या है? हमें मांगना कैसे तरीके से मांगना, और किसी को अल्लाह को क्या कैसा दुआ करना चाहिए, हमारी झोली अल्लाह के सामने फैलाकर हमें क्या दुआ मांगना चाहिए।
वो भी कितना खुशू खुजू से दुआ मांगना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यही बात बताई जाती है। या क या कसीर ज़ुनूबु अफ़ा अफ़ा अल्लाहु मिन ज़ुनूबिका अकबर ज़म्बिका अज़ीमा अल अशिया फ़ी जंबल्लाहि तगफिर। तो ये हदीस का तर्जुमा है, ऐ बेशुमार गुनाहगार गुनाहों वाले इंसान, अच्छी तरह जान लो। क्या? अच्छी तरह जान लो, अल्लाह की बख्शिश तेरे गुनाहों से बहुत बड़ी है। क्या? अल्लाह हमें जितने भी गुनाह कर रही हैं, अल्लाह की बख्शिश उससे कई गुना ज्यादा है। हमें नहीं समझना कि हमारे गुनाह इतने हैं, हमें कैसा अल्लाह के सामने जाना, ऐसा नहीं सोचना। तेरे गुनाह तेरे गुनाह तमाम चीज़ों से बड़े सी बड़े बड़े हो बड़, बड़े सी, लेकिन कि तो तुम्हारे गुनाह कितने भी बड़े हो ऐसा, लेकिन अल्लाह के दामन बख्शिश में उनकी कोई हैसियत नहीं। कितने भी तुम्हारे गुनाह हो, अल्लाह की बख्शिश के दामन में उसकी कोई, वो गुनाह की कोई भी हैसियत नहीं। अल्लाह ऐसे सब गुनाहों को माफ कर देता है। क्या? अल्लाह ऐसे सब गुनाहों को माफ करने वाला गफूरुर रहीम है। जहाँ यह हदीस इंसान को ये बात जहाँ ये हदीस इंसान को ये याद दिलाती है कि अल्लाह की बख्शिश हर चीज पर वसी तर है। क्या? अल्लाह की बख्शिश हर चीज पर वसी तर है। वहाँ बख्शिश के हुसूल के लिए तीन तरीके की निशानदी भी करती है। हदीस कुर्सी होने होने के तैसे अल्लाह 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 ये फरमा रहा है कि इब्ने आदम, जब तक तू उम्मीद व बहम के साथ मेरी रहमत की आशा आशा लगाए मुझसे दुआ मांगता रहेगा, तो तेरे गुनाह ख्वाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। और मुझे उनकी उनकी कोई परवाह नहीं। बस अल्लाह से दुआ मांगने में बखिल नहीं करना चाहिए। क्या अल्लाह ताला क्या बोलता है? अगर से तुम्हारे में भूल चूक कितने भी गुनाह हो चुके हो, क्या भी हो चुके हो, तुम्हें क्या करना? अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते रहो हर हमेशा। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह और दुआ मांगने में बखील ना होना। क्या ना होना? अल्लाह को दुआ मांगने में बखील ना होना। इसीलिए के इसीलिए कि दुआ मांगने के साथ दुआ की कबूलियत का वादा किया गया है। दुआ मांगने के साथ कबूलियत का वादा भी अल्लाह किया गया, क्योंकि दुआ कबूल होने के लिए तीन तरीके होते हैं। क्या? एक तरीका यह है कि दुआ अल्लाह चाहे तो जब का जब भी वो पूरा कर सकता है, या थोड़े दिन के बाद भी पूरा कर सकता है। एक नंबर दो, जो भी ना हमारे को मुसीबत आती है, हमें दुआ करते हैं, जो भी चीज तलब करते हैं, वो चीज हमको नहीं मिली उस वक्त, हमें मायूस आते हैं। मायूस नहीं होना, क्योंकि वो चीज नहीं मिले तो भी वो उसका दुआ क्या होता है? जो भी हम पर मुसीबत या परेशान आती है, अल्लाह ताला ये दुए के जरिए वो मुसीबत को हटा देता है। ये नंबर दो हो गया। नंबर तीन क्या है? जो भी हमारे दुआ हमें मांगते हैं दुनिया में, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी हमें नियत करके मांगते हैं, वो अगर जब हमको नहीं मिला दुनिया में, वो कहाँ इकट्ठे होता? आखिरत में हमारे लिए इकट्ठे एक पहाड़ के बराबर होता। जब हमें समझने के हमारा दुआ, एक दुआ भी दुनिया में कबूल ना होता तो हमारे लिए बहुत बेहतर होता। क्योंकि अल्लाह ताला के पास नेकियां बढ़ना या हमारा अजर बढ़ना बहुत अच्छा लगता है इंसान को। इसीलिए वो आखिरत में होता। नंबर एक क्या होता? जब का जब भी हो सकता है, या थोड़े दिन के बाद में हो सकता। नंबर दो क्या है? दुए से दुए से क्या तकलीफें दूर होती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं। नंबर तीन, आखिरत में जमा होता है। और एक हदीस है, वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजाबु लकुम। ये सूरा गाफिर है, आयत नंबर 60। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताद हदीस में इस बात पर इस बात पर जोर दिया दिया गया है कि अल्लाह से मांगो, खूब मांगो। क्या? अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, इसरार के साथ मांगो। इसरा अल्लाह के साथ जब भी तुम्हें जो भी मांगते हैं खूब मांगो,
और अच्छे से अच्छा मांगो अल्लाह से। अल्लाह से मांगने में बखीली मत करो, इसरार के साथ मांगो, आजिजी अंगसखारी के साथ मांगो। मांगते वक्त तुम्हारे दिल को गाफिल नहीं होना चाहिए। अब हमें दुआ मांगते हैं, वो टाइम में हमारा दिल गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पुर उम्मीद रहना, अल्लाह पर पूरी उम्मीद रखकर हमें मांगना चाहिए। ये काम अल्लाह ताला जरूर करेगा हमारे लिए, ऐसा उम्मीद रख के मानना। हमें दुआ करते हैं शायद ये कबूल होता या ना कबूल होता, ऐसा नहीं सोचना, अल्लाह पर उम्मीद से मांगना। और यूं टूट कर मांगो मांगो के तुम्हें अपनी दुआ की कबूलियत का यकीन आ जाए। हमें ऐसा टूट करके तो अल्लाह को बहुत यकीन के साथ, अल्लाह ताला जरूर ये करता, जरूर ये सुनता, कबूल को हमें अच्छा कैसा यकीन के साथ हमें मांगते, वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसलिए कि जो आदमी मुसलसिल और दायमी दरवाजे खटखटाता है, दायमी दरवाजे खटखटाता रहता है, यकीनन दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। देखो, हमें सारा दिन हमें दरवाजा खटखटाते रहे तो एक टाइम नहीं तो एक टाइम दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला भी क्या बोलता है, हर टाइम तुम्हें दुआ मांगते जाओ, अल्लाह ताला जब चाहे तुम्हारा दुआ कबूल करता, जब चाहे तुम्हारा मुसीबत दूर कर सकता, और तुम्हारे दुआ भी अल्लाह ताला आखिरत में बढ़ चढ़ाकर अल्लाह ताला नेकियों की शक्ल में दे सकता। ऐसा दुआ मांगने में क्या करना, बखुल नहीं करना, मांगने में भी खूब 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 अल्लाह से दुआ करना, खोल देता है। यकीनन दरवाजे के दरवे यकीनन दरवाजे उसके लिए खोल देता है। वमा कान अल्लाहु लियुदिय्यु अला अबदिन बाबा बाबुद दुआ वयगलिqu अन्हा बाबुल अल अलजाबा। तिबरानी की हदीस है, तर्जुमा है, अल्लाह अल्लाह अपने अपने लिए इस बात को मुनासिब नहीं समझता कि जिस बंदे पर जिस बंदे पर दुआ का दरवाजा खोल दे। क्या है, बंदे पर दुआ का दरवाजा खोल दे, कबूलियत का दरवाजा उस पर बंद कर दे। तो अल्लाह ताला ऐसा चाहता नहीं कि उस पर मेरा दरवाजा बंद कर दूं, या कबूलियत का दरवाजा बंद कर दूं, ऐसा नहीं चाहता। अल्लाह ताला अपने बंदा कभी कभी तौबा करके मेरे तरफ रुजू करता, कबूल को अल्लाह ताला इंतजार करता रहता, बनी आदम को मौका देता रहता कि अल्लाह ताला अभी मेरा बंदा मेरे तरफ लौट आएगा। इसीलिए जब तक उसकी मौत का नजारा वो नहीं देखता, जब तक भी अल्लाह ताला उसे मौका देता रहता। अदउल्लाह व अंतुम मौकूना बिल जबता व अन्नल्लाह ताला ला यक़बलु दुआ मिन क़ल्बि गाफिल। उसका तर्जुमा है, अल्लाह अल्लाह से उस तरह मांगो मांगो कि तुम्हें अपने दुआ के कबूल होने का यकीन हो। क्या, हमें जो भी मांगते हैं अल्लाह ताला से, वो कबूल होने का यकीन भी हमें होना चाहिए। और बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह और गाफिल दिलों की दुआ कबूल नहीं करता। जो भी बेपरवाह और गाफिल गाफिल से हमें दुआ करते हैं, वो दुआ भी कबूल नहीं करता। कौन? अल्लाह ताला। इन्ना हाज़ल कुलूब अविया वबादा अविया मिन बादी फ़इदा सअलतुमु सअलतुमुल्लाहु फसअलूहु व अंतुम मौक़ूना बिल बिल अजaba फ़इन्नल्लाहा ला यस्तजीबु लिअबदिद दुआ मिन ज़ाहिरि क़ल्बि गाफ़िल। इसका तर्जुमा है, बेशक ये दिल कशकुलों ही बेदिल ये दिल बेशक ये दिल कशकुलों ही और बाज बाज से बड़े ही। बस जब तुम अल्लाह से मांगो तो उस तरह मांगो तुम्हें अपनी दुआ कबूल होने का यकीन हो, इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला गाफिल दिल बंदे की दुआ कबूल नहीं करता। लेकिन बार बार ये चाहता है, गाफिल दिल से अल्लाह को दुआ नहीं करना चाहिए। दुआ से बेनियाज
बेनियाज ना होना, दुआ से बेनियाज ना होना, ना होना जाना के बेशक दुआ मांगने वाला कभी हिलाक नहीं होता। दुआ मांगने वाला कभी हिलाक नहीं होता, क्या उस पर अजाब, कोसा भी अजाब नहीं आता। हिलाक के तो वो एक अजाब के जैसा, वो अजाब नहीं आता, उसे दुख भी नहीं अल्लाह हर हमेशा हमें अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता, क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला उस बंदे को जानता है, उस पर क्यों ऐसा ये करता नहीं करता। इसीलिए अल्लाह से दायमन जुड़ के रहना, अल्लाह से दुआ करते रहना, अल्लाह से इस्तगफार करते रहना, ये इंसान की बेहतर है, इंसान के लिए बेहतर है। ला तज ला तजज़ौ अन दुआ फ़इन लन यहलुकु मअ दुआ अहदा। तर्जुमा, इसका तर्जुमा है, दुआ से बेनियाज ना होना, आपने बोली थी वही याद, ना होना, बेशक दुआ मांगने वाले कभी हिलाक नहीं होते, कि तो अल्लाह ताला उन्हें को हिलाक नहीं करता, उन्हें की हिफाजत कर लेता। ये अबू दाऊद और तिरमिजी और इब्ने माजा मुस्नद अहमद हदीस में, ये सब हदीसा में दुआ बहुत बड़ी कुवत है। ये सब भी किताबों में क्या है, हकीकत क्या मालूम है हमको, दुआ बहुत बड़ी कबूलियत है, कुवत है। दुआ बहुत बड़ी कुवत है। दुआ ही इबादत के रूह और उसकी जान है। क्या है? दुआ इबादत की और रूह और उसकी जान है। दुआ बहुत बड़ी अहम है। देखो ये आयत में क्या मालूम होता, पहली बात क्या आया, दुआ बहुत बड़ी कुवत है। नंबर 2 पॉइंट पर क्या है, दुआ ही इबादत की रूह और उसकी जान है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़े बात मालूम होते ये हदीसा से, हम ना हमें कभी भी हमें ये हदीसा को गुजर को भी जानते नहीं। इसीलिए अल्लाह से दुआ करते रहना के अल्लाह ताला हमें सीखने और सिखाने के लिए अल्लाह ताला बेहतरीन मौका दे, हमारे दिलों को मजबूत इल्म से नवाजे, अल्लाह ताला आसान कर दे और गैब से मेहरबानी सिखाए हम सबको। इसीलिए मैं ये आप सबसे दरखास्त करती हूँ कि इल्म सीखना सिखाना बहुत बड़ा जिहाद है ये। प्लीज अल्लाह के वास्ते सीखने की कोशिश करो, अल्लाह की मारुफत जानो, अल्लाह उसके रसूल क्या है जानो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है वो जानो, ये हदीसों से जानो, बहुत बड़ा पे अल्लाह की तारुफ भी मालूम होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से भी हमारे मालूम होती है, उनके उन जो जो करे दुनिया में वो भी हमारे मालूम होती है। हमें नेक रास्ते चलने के लिए हमको आसान ही कर देता अल्लाह ताला। अब क्या है इसमें क्या मालूम है, दुआ ही इबादत की रूह और उसकी जान है। दुआ मांगते वक्त आजिज़ी अंगसकारी गालिब रहनी चाहिए और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होनी चाहिए। क्या? दुआ मांगते वक्त अल्लाह की उम्मीद से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। क्या तो अल्लाह पहले हमें ये हो हमें देख चुके हैं कि अल्लाह पर हमें उम्मीद किस पर रखना, अल्लाह पर उम्मीद रखो, हमें करे तो दुआ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसान कर देता, आसान कर देता। वदऊ खौ खौफन व तमान अन्नल्लाह करीबु मिनल मुस मुहसिनीन। सूरह अल आराफ आयत नंबर 56 में। दुआ में अल सलाह और जारी अल्लाह की रहमत को करीब करीब कर देती है। क्या है? दुआ इंसान को अल्लाह की रहमत के करीब कर देती है। अल्लाह के साथ हमेशा हुस्न जुन ही रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? अल्लाह के साथ हुस्न जुन ही रखना चाहिए। हम दुआ मांगने हो तो ये दुआ किसी किसी ना ओली से हो सकता, ना किसी पीर से हो सकता, ना किसी को सा भी ना शदर से, ना ना पत्थर से, ना किसी भी दुआ का बदला देने का किसके भी ताकत नहीं। बस सिर्फ अल्लाह ताला को ये ताकत है। यानी हर चीज को अल्लाह ताला पैदा करे, खालिक है, खालिक खल्लाक है। खल्लाक का मतलब क्या? हर चीज को तख्लीक करने वाला, हर चीज को पैदा करने वाला, ये सिर्फ अल्लाह को ही उसका हक है। वो हर एक का दुआ भी कबूल करने वाला, हर एक को पैदा करने वाला, हर एक की हाजत भी पूरा करने वाला अल्लाह ताला को है। इसलिए हमेशा किसको हुस्न ज़न रखना,
अल्लाह ताला को। ना इंसान हमें क्या करते हैं, ये इंसान से ऐसा करे तो हमारा थोड़ा मदद होता है, इससे करे तो थोड़ा मदद होता है। हम जिसे मदद करते हैं, उसके बदले में हमें मदद चा हम इसके बदले में वो जो मदद करे हमको, ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं समझना। हमें अगर चा अल्लाह ताला मौका दिया हमें करने के लिए, जिसको भी जो भी करने के लिए, यानी अच्छी बात करने के लिए भी अल्लाह हमको मौका दिया, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसका उसका शुक्र शुक्र बहुत शुक्र अदा करना अल्लाह ताला का। क्या वो बात बोलने के लिए अल्लाह ताला मौका दिया, कबूल को अल्लाह का शुक्र अदा करना, और उस बंदे का भी शुक्र अदा करना, वो मौका अल्लाह हमको दिया उसके तरफ से। अगर से हमें क्या करते हैं ऐसा, हमें इसे दे तो वो बदले में कुछ मेरी मदद करे, यानी उसे दे तो क्या आता, ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं समझना। जो भी मौका मिला, नेकी का मौका मिला, उसे फौरन करना, ये साबिकून अल अव्वलीन में से है ये बात। नेकी का काम छोटा से छोटा हो, बड़े से बड़े हो, छोड़ना नहीं। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नेक काम है उसमें बढ़-चढ़ कर करना। अल्लाह ताला उसका अगर दुनिया में नहीं दिया तो भी इंशाअल्लाह आखिरत में उसका बेहतरीन बेहतरीन अजर अल्लाह ताला देने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इसीलिए मैं बोलती हूँ, इस जो भी हमें, अब मैं पहले भी मैं बहुत हदीस में मैं ये बात बोल चुकी हूँ। क्यों? 2 आदमी है, एक आदमी को रास्ता मालूम है, उसे मंज़िल तक पहुँचने की। एक आदमी को रास्ता मालूम नहीं। मालूम है तो आदमी जल्दी पहुँचता, मालूम होया तो आदमी जल्दी पहुँचता, क्योंकि मालूम होया तो आदमी जल्दी पहुँचता। उसे उसका रास्ते का पता है इसलिए जल्दी पहुँचता। ये मालूम नहीं तो नहीं, इधर-उधर से घूम के गए तो बहुत देर होता। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की किताब वसी है, अब जो भी जहाँ भी वसी है। सब लोग क्या बोलते हैं, बयान सुनो बोलते हमें नमाज़ पढ़ती हैं, हमें कुरान पढ़ को ही ऐसा बोलते हैं। पढ़े पढ़े तो भी बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा। ऐसा इल्म के मजलिस में ऐसा एक-दूसरे से मुलाकात होती, ये अगर जब मुझे मालूम नहीं तो बात तुम्हाको मालूम होंगी, तुम्हारी तरफ से मैं सीखूँगी। अगर जब तुम्हारे वो बात तो तुम तक नहीं पहुँची, वो मेरे तरफ से मालूम होगा। इसीलिए सवाल-जवाब में हिस्सा लेते रहना, ऐसा पढ़ने पढ़ने के टाइम को एक से बढ़कर एक पढ़ने की कोशिश करना कि अल्लाह ताला क्या हमारे लिए हुक्म दिया, दुनिया में कैसे हमें ज़िंदगी बसर करना। ऐसे एक में एक नहीं, एक में एक, माँ में बेटा नहीं, बेटे में माँ नहीं, बीवी में शौहर नहीं, शौहर में बीवी नहीं, ऐसे हमें दुनिया गुज़ारते हैं। ये किताब पढ़ने से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत जानने से हमें पता चलता है कि हमें कौस रास्ता चलना, कैसा हमें चलना, क्या हमें करना। किसका शौहर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो नबी, उनके सुन्नत को तो भी चलो, जो भी हमें नेक काम करती हैं, हमें ये करती हैं, हमें वो करती हैं, हमें कबूल को इस्लाम को बदनाम कर देती। क्योंकि इस्लाम में जो ऐसा करती हैं, ऐसा कर को फिर भी जाहिल बना करती हैं। ऐसा करने से अल्लाह ताला गज़बनाक हो जाएगा, ऐसा मत करो। अल्लाह से माफ़ी माँगते रहो, जो भी हमें करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। मैं ये क्या बोलने का, सब भी ऐसा करती नहीं बोलती, जो भी है वो बोलते हैं हमें हमें करती हैं, हमें ये काम करती हैं, कबूल को बोलती हैं। फिर दूसरा जब छोटी से छोटी गलती है तो उसे क्या बोलती हैं, "तू सब कुछ जान को भी तू गलती करता है," कबूल को बोलती हैं, "तू गलती करती है," को बोलती हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मालूम हो को मालूम होना करती हैं, फिर उससे तौबा करना चाहिए, उसके इसरार नहीं करना चाहिए। ये हदीस से हमें क्या पता चलता है, अल्लाह से हर हमेशा हुस्न ज़ुन रखकर हमें अल्लाह से माँगते रहना चाहिए। अल्लाह जो मौका दिया, वो मौके पर हमें अमल करना चाहिए। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें एक रत्ती के बराबर भी हमें उन पर ये करें, यानी उन पर एहसान करें। अल्लाह ताला हमको बहुत से, अल्लाह ताला का उसका खजाने में, उसका इल्म में बहुत है। अल्लाह ताला बढ़-चढ़ कर उसका अजर देगा और उसमें बरकत भी देगा इंशाअल्लाह। जी, अब क्या है, जैसा जैसा अल्लाह पर इंसान गुमान रखता है, अल्लाह उस पर वैसे ही गुमान रखता है। हमें कैसे अल्लाह पर गुमान रखते हैं कि अल्लाह भी हमारे पर वैसा ही गुमान रखता है। हदीस में आता है कि हदीस में आता है कि एक मोमिन को क़यामत के दिन लाया जाएगा। क्या? एक मोमिन को क़यामत के दिन लाया जाएगा। ये हदीस में ये बात पता चलती है क्या होता है उसके उनके साथ। ये हदीस में आता है कि ये एक मोमिन को क़यामत के दिन लाया जाएगा और
अल्लाह उसे अपने दामन में छुपा लेगा। सुभान अल्लाह। मोमिन को देखो अल्लाह ताला कितनी मर्तबा दिया, छुपा लेगा। और उससे पूछेगा क्या तू उस गुनाह को जानता है? वो मोमिन से पूछेगा, अपने दामन में छुपा लेने के बाद में पूछेगा, क्या वो तू उस गुनाह को जानता है या जानती है? वो कहेगा हाँ या मेरे रब, हाँ। वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। फिर वो बेचैन होकर दाएं बाएं पहलू बदलेगा। क्या अल्लाह ताला कब उसे सवाल करता है? हाँ मैं करी ये गुनाह कर को दाएं बाएं, वो उसे थोड़ा ये डर लग जाता, खौफ हुआ था, उस बदलेगा इस ख्याल से कि अब उसको अब उस गुनाहों की सजा मुझे मिलेगी। जो भी मैं कर रहा हूँ गुनाह, अल्लाह ताला उसका सवाल कर रहा है, मैं जवाब दी हूँ। अब मैं ये वो बेचैन होता, क्योंकि अब गुनाह का सजा जरूर अल्लाह ताला देता है कपल को। वो बेचैन हुआ था, अब सजा मिलेगी। अल्लाह ने उसे कहेगा कोई खौफ ना हो, आज तुम मेरे दामन में हो। देखो अब आज जो भी करा तू उसका कबूल करे, मैं ये गुनाह करीम को कबूल करे, फिर भी आज कोई खौफ ना हो, आज तू मेरे दामन में है। मेरे और तेरे दरमियान कोई हाइल नहीं, मेरे और तेरे दरमियान कोई हाइल नहीं। इससे ये बात को लगो हमको क्या मालूम होता है? अल्लाह के दरमियान, हमारे दरमियान कोई भी हाइल नहीं, कोई चीज भी हाइल नहीं। मांगो सिर्फ अल्लाह से मांगो, मांगो सिर्फ अल्लाह से ही मांगो। अल्लाह ताला बहुत देने वाला, वो बेहिसाब रिज़्क देने वाला मेरा मालिक है। जो तेरे गुनाहों को जान सके, जा मैं तुझे माफ कर दूं, माफ कर दिया। जो भी तेरे गुनाह को तू जाने, जा मैं तेरे गुनाह को माफ कर दिया सिर्फ एक हुरूफ के बदले। तेरे एक हुरूफ के बदले मैं तेरे गुनाह को सभी मैं माफ कर दिया कपल को। अल्लाह ताला उसे, वो बंदे को खुशखबरी दिए। वो क्या, वो एक हुरूफ वो देखेंगे इंशाल्लाह। मैं जो एक हुरूफ के बदले में जो तू ले मेरे पास लेके आएगा, जो मेरे पास लेके आएगा, वो क्या होगा? ऐ मेरे रब, वो क्या होगा? वो पूछता है वो बंदा, वो क्या हुरूफ करीम, वो क्या मैं नेकी करीम, ऐसा पूछता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाएगा कुंत ला तरजू अल अफू मिन अहदा गैरी। ये तिबरानी की हदीस है। इसका तर्जुमा क्या है? तू मेरे अलावा किसी किसी गैर से बख्शिश की उम्मीद नहीं रखता था। क्या वो दुनिया में जो भी करता रहा, जो भी गुनाह करता रहा, जो भी गलती करता रहा, वो बख्शिश की उम्मीद किसे रखता रहा? सिर्फ अल्लाह से रखता रहा। ये बात उसे ये एक बात के लिए अल्लाह ताला क्या करे, उसे माफ कर डाला, उसे अपनी दामन रहमत में लिया। लेने के बाद में उसे खुशखबरी भी पहुंचाई अल्लाह ताला ने। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमें क्या पता चलता? इससे हमें पता चलता कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जो कुछ भी हमें हमारे से हो या नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला जानता है। इसलिए अल्लाह ताला के ऊपर ऊपर उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह ताला उसे माफ करने वाला है। बस इस हदीस से अल्फाज बहुत वाज़ेह हैं। इस हदीस से हमें क्या मालूम होता है? बहुत वाज़ेह है। तू मेरे अलावा किसी को बख्शिश की उम्मीद नहीं रखता था। वो किसी की उम्मीद नहीं रखता था। इसका मतलब क्या? अल्लाह के साथ किसी को शिरिक नहीं करता था। अल्लाह के साथ किसी को शिरिक नहीं करता था। इसीलिए जो भी गुनाह अल्लाह ताला माफ करता है। अगर जब शिरिक कराया हो, उसका जरूर वो बदला लेके बाद में जाएगा जन्नत में। इसीलिए उन्हें किसी भी जो भी करता रहा गुनाह, शिरिक नहीं करा, बस उम्मीद अल्लाह पर रह गया। इसीलिए अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हमें ये भी बात ये करेंगे इंशाअल्लाह, जो भी माल ना जाने में शिरिक हुई, अल्लाह ताला से तौबा करे। शायद अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, उसे माफ करा तो माफ कर सकता है। वो अल्लाह की मर्जी है, वो अल्लाह के इल्म में है, वो हमारी बात नहीं। हो या हो तो भी क्या हमें करना? अगर जब जो ला इल्मी में हमारे से हो या शिरिक हो, जो भी हो,
हुआ वो हमें अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर हमें रोना चाहिए। अल्लाह हमारे गुनाह को दरगुजर करने वाला, माफ करने वाला गफूर रहीम है, उस पर पूरी उम्मीद रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से हमें हर वक़्त तलब करते रहना चाहिए कि हमें नेक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अल्लाह ताला हमको दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब हमारे सीनों में महफ़ूज़ करे, सुनने वालों को और सुनाने वालों को भी इस पर अमल करने की भी तौफ़ीक दे इंशाअल्लाह। उसके उसके बाद बस थोड़ा-सा है इंशाअल्लाह ये करके मैं ख़त्म करूँगी। सही हाकिम में सही हाकिम में एक आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और अपने गुनाहों का दिहाई फरमाने लगा। वज़ वज़नु या बह मर मर्रतैन सलासा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल अल्लाहुम्मा अग़फ़रतका औ औसा मन ज़म ज़ुनूबी रहमतका अर्जी अन्नी मिन अमली। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह तो तेरी बख्शिश तो मेरे गुनाह से वसी तर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बंदे को क्या बोल रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांग और ये दुआ ऐसी मांग। अब तर्जुमे में तुम्हें मालूम पड़ता है, ऐ अल्लाह तेरी बख्शिश तो मेरे गुनाहों से वसी तर है और तेरी रहमत मेरे अमल की निस्बत में बहुत वसी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद रखना अल्लाह को इंशाअल्लाह। इस आदमी ने एक दफा ये दुआ पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, दोबारा पढ़ो। उसने दूसरी दफा पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पढ़ो फरमाए फिर पढ़ो। उसने तीसरी दफा पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुम कद गफरल्लाहु लक लक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोले वो बात। क्या है उसका तर्जुमा? जा तुझे अल्लाह ने बख्श दिए। देखो सुभान अल्लाह! ऐसा ऐसा क्या जब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, उनके पास जाकर बख्शिश की दुआ माँगते रहे और बख्शिश भी होती थी। अब में कैसा अब में बहुत से है, फिर भी अल्लाह वाले बहुत है, अल्लाह पर ईमान लाने वाले यानी नेक इंसान बहुत है। हम उनसे भी कह सकते हैं कि दुआ में हमको याद रखो, हमें क्या करने से हमका ऐसा होता। मशवरा लेते रहना चाहिए, जो भी हमारे से खता हुई, गुनाह हुआ, हमें उनसे मालूमात होते रहना। इसीलिए सवाल-जवाब में ऐसे बातें जो भी है आपको प्रश्न समझ में नहीं आई, पूछ सकते हैं। इससे ऐसा पूछने से भी इल्म में इज़ाफ़ा होता। ऐसा है कि जो भी टॉपिक चलती है, वो टॉपिक से बराबर पूछे तो आसान हो आता। यानी ये कोई दूसरी टॉपिक चलती है, ऐसा ज़्यादा सवाल करने से भी ये भी नाफ़रमानी है दीन में। इसलिए जो भी हमारे समझ में नहीं आई दीन की बात में पूछना, ऐसा समझना, ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। या रब इन अज़ीम ज़ुनूबी कसीरता फलह फलक फलकत अमलत बान अफूका व अज़ीम। ऐ मेरे परवरदिगार, अगरचा मेरे गुनाहों के इन इन बार बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तेरे गफूर अफू व दरगुज़र मेरे गुनाहों से ज़्यादा ही। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हर बार ये गुनाह के बारे में कई को आता है, जो भी है अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा हुआ नहीं इंसान का, हर बार भी अल्लाह ताला को मालूम है। इसलिए हमें जो भी हमारे से हो सकता हो गया, अगले होने वाला है, ये गुनाह सबसे हमें बचना है तो हर हमेशा हमें इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए और इस्तिग़फ़ार करने से बहुत फ़ायदे भी है। इस ह एक हदीस में ये भी आता है, इंसा अ, हदीस में हदीस में अल्लाह की बख्शिश का दूसरा असबाब तरीक़ा तरीक़ा जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई। क्या? ये एक दुए की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को, अपने सहाबा को रहनुमाई फरमाई। वो क्या है? वो इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार देखो इस्तिग़फ़ार कितनी बड़ी दुआ है। एक वो हदीस में है, ये हदीस में है। इस्तिग़फ़ार अल्लाह से बख्शिश तलब करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगनी है और गुनाहों से इज्तनाबा की दुआ करते रहना चाहिए।
करते रहना है। कुरान मजीद में इस्तग़फ़ार का बहुत ज़िक्र आया है। कहीं अल्लाह यूँ हुक्म देता है, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सूरह अल-मुज़म्मिल आयत नंबर 20 में व इन अस्तगफरा रब्बुकुम रब्बुकुम, ऐसा बहुत सूरह में इस्तग़फ़ार आए और क्या, और कहीं अल्लाह बख्शिश मांगने वालों का जिक्र खैरों में फरमाए। इसलिए ज़्यादा बख्शिश मांगने वाले भी अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा है। हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, अल्लाह पर उम्मीद रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से कभी भी मायूस नहीं होना और दुआ माँगने में कभी सुस्ती नहीं करना, सुस्ती और काहली नहीं करना। अल्लाह से हर हमेशा हमें दुआ करते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह ताला मौका दिया इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अनिश वशफ़ती फ़ी क़बरी, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जती या रब्बल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलवालिदैया वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वलमुस्लिमीना वलमुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुमुल अमवात इन्नका समीउन करीबुन मुजीबुद दावात। अल्लाहुम्मा अज़हबल बासा रब्बन नास अश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। सुब्हान रब्बिका रब्बि सुब्हान रब्बि सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बी अग़फ़िरली वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।